Hello everyone, I am Nimish Wagre. In GATE 2021, I have secured All India Rank 23 in Chemical Engineering. In this video, we will discuss on how to do question paper analysis. This video is very important for those who want to secure a good rank in GATE examination, and for this they are giving question papers. And they are unable to analyze this, how to properly analyze this question paper. So let us start our discussion. I will show my analysis also in this video. So let us start our discussion. So when I want to solve this question paper, means what I initially I was doing while solving subject wise question papers. 14 days I was doing some a revision of these three subjects, and on 15th day I was solving question papers on these three subjects and mathematics. And in which what I was doing was, after getting up on this question solving day, after getting up at 7 or 7:30 am, and after completing all daily activities, and then up to 9 am I was doing revision up to 9:30. I was doing any reading any theoretical subject like chemical technology, and doing reading something which will any formula and something up to 9 and 9:30. And then at 9 am I was or 9:30 am I was solving a question paper. Means how many test series I was joined, actually 2 test series, and I was solving all paper subject wise paper from this both test series in this 9 to 1 p.m. Means in morning period I was solving all subject wise and advanced level question papers in this morning period. And once while solving this question paper, I was I was doing rough work very clean. Means let us take example. I was taking a notebook like this, and I was properly making making 2 sides on this page, and 1 2 3 4 5 6 7. I was making rough work very neatly while solving this question paper. And after the once question paper completed, means I was trying to complete all question paper up to 1 p.m. And then up to between 1 to 2 p.m. I was doing lunch break and doing some time pass on mobile, and such kind of activities up to 2 p.m. And then at 2 p.m. I was starting doing question paper analysis. Guys, I will really suggest you, जितना जल्दी करोगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद जितना जल्दी एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. मतलब आप क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कर रहे 2-3 दिन के बाद एनालिसिस करने बैठ जाओगे तो उतना इफेक्टिवली नहीं रहेगा वो. जितना क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व होगा और उसके बाद जितना जल्दी एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. सो एक बजे तक क्वेश्चन पेपर मेरा सॉल्व हो गया, जितने हो गए 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए. उसके बाद 2 बजे से मैं एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता था. एनालिसिस करते टाइम क्या करता था, स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट करता था. सॉल्व क्वेश्चन पेपर हो गया था सबमिट करके, तो जो वापस सोल्यूशन आ रहे कितने का करेक्ट, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था. जो पहला क्वेश्चन करेक्ट आया है क्या, तो क्या क्वेश्चन था उसका, मेरा स्टेप करेक्ट था क्या, उसकी तरह वो एक चेक करता था. जो जितने करेक्ट आ गए उसके ऊपर से नज़र घुमाते जाता था कि वो मेरा उस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम कोई कन्फ्यूजन तो नहीं था उसमें. एक प्रॉपरली एनालिसिस करता था. जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते तब किसी क्वेश्चन में ऐसे लगे कि मैं सॉल्व कर रहा, मेरा ये आंसर आ रहा पर एक करेक्ट है क्या, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा कोई क्वेश्चन पेपर में, तो उसको थोड़ा स्टार करके रखिए रफ वर्क में, या कोई याद रखिए उस क्वेश्चन को. और दोपहर को बाद जब एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे वो करेक्ट आ गया होगा तो आपके स्टेप जो कर रहे हो वो करेक्ट है. मतलब उस पर एक बार ऐसा कंफर्म कर दीजिए, कॉन्फिडेंस का खुद में ला लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट है. और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे जाएंगे कि आपके रॉन्ग क्वेश्चन जाएंगे, तो उसके पहले रॉन्ग जाएंगे. रॉन्ग क्वेश्चन के बाद में क्या करता था, जो क्यों रॉन्ग जा रहा, मतलब थ्योरी क्वेश्चन होगा, थ्योरी का कोई केमिकल टेक्नोलॉजी का कोई सब सेंटेंस होगा, या ऐसा कोई थ्योरी सब क्वेश्चन होगा और वो मेरा रॉन्ग गया, तो एक तो याद रखता था, या एक सेपरेट नोटबुक जो बनाई थी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए,
उसमें लिख के रखता था टेस्ट का नाम, वो कब सॉल्व की, और उसमें वो क्वेश्चन पेपर वो थेरेटिकल क्वेश्चन लिख के रखता था, थ्योरी सेंटेंस। और न्यूमेरिकल होगा और मेरा रॉन्ग सॉल्व करके रॉन्ग गया होगा तो मैं उससे रफ वर्क से चेक करता था। रफ वर्क में मैंने क्या किया, उसमें क्या रॉन्ग गया, क्या सॉल्व किया है, उसमें क्या रॉन्ग गया और कहाँ रॉन्ग गया। और एक बार रॉन्ग गया मुझे याद आया कि मैं वापस एक बार ऐसा विदाउट चेकिंग वॉचिंग सॉल्यूशन एक बार सॉल्व करके देख लेता था। मतलब एक बार कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने ये मिस्टेक नहीं की थी, मैं ये मिस्टेक नहीं की होती तो मेरा क्वेश्चन आज करेक्ट आया होता। ये एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया उसके बारे में, तो ऐसा बाद में आप मिस्टेक अवॉइड करते जा सकते हो। मतलब इतना तो आना चाहिए कि ये मैंने मिस्टेक की और उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया, या उधर दिमाग सही नहीं था या क्या हुआ, वो आपके उसमें आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद वो थर्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको आए नहीं होंगे, मतलब आप वो पहली बार देख रहे होंगे या कुछ याद नहीं आ रहा होगा, वो आपको इतना तो रहना चाहिए कि मुझे वो क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं आया या नया ही क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब वो नया क्वेश्चन होगा जो आया नहीं आपको, वो थ्योरी का सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा तो लिख के रखिए। और वो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और उसमें जो फार्मूला यूज़ किया या मेथड यूज़ किया तो कुछ नहीं होगी उसमें, तो आप वो फार्मूला ऐसा लिख के रखना चाहिए। फार्मूला नया है क्या जो आपने पढ़ा नहीं है तो उसमें बुक में जाके पढ़ना चाहिए। और वो इधर नया क्वेश्चन पेपर बुक में नहीं है कोई और इधर क्वेश्चन पेपर में नया फार्मूला है, तो आपको पहले उसको कहाँ से फार्मूला आया, कैसे वो डिराइव किया, वो उतना तो लिख के रखो। मतलब फार्मूला लिख के रखो और किसको तो भी पूछने के लिए लिख के रखो, कोई टीचर को या आपके फ्रेंड को। ऐसे वो डायरेक्टली फार्मूला नया होगा और डायरेक्टली ऐसा रट्टा मत मारिए, वो ये फार्मूले है अपने पास, उधर से ये फार्मूला कैसे आया, इतना आपको ये होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए कि ये कैसे आया। और वो तो हो गया, मतलब ऐसे में बहुत से क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए। उसके बाद ऐसे एक रिवीजन करने के लिए जाओ, बहुत क्वेश्चन पेपर 30-40 क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व हो गए, तो उसका रिवीजन कैसे करना, तो उसके लिए मैंने बाद में क्या किया था, मतलब बहुत मैंने लेट किया था, बहुत लेट हो के कर लिया था। तो आपको अभी जल्दी आपको तो सजेस्ट करता हूँ। आई थिंक इट इज़ प्रॉपरली विजिबल टू यू। ये देखो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा, तो उसका ऊपर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड ये है 2000 2016 गेट 2015 या ऐसे नाम लिखता था। और उसके बाद क्या था, क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन, सेकंड कॉलम में पहले पेपर नेम, उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, जो सब फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे तो कोई तो भी सब्जेक्ट होगा, केमिकल रिएक्शन, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशन, इकोनॉमी, और कौन से क्वेश्चन का नंबर, उसके क्वेश्चन पेपर। ये थर्ड कॉलम क्या है, उसमें 3 है, देखो न्यू, नया क्वेश्चन था वो नया था या सिली मिस्टेक कर दिया या मैंने अभी तो किया ही नहीं, वांट टू डू, ये था। मतलब क्वेश्चन अच्छा होगा, मैंने कुछ नया होगा उसमें तो गुड लिख के रखता था और उसमें छोटा सा कमेंट लिख के रखता था यो का क्वेश्चन का क्या है उसमें। मतलब एक कमेंट पढ़ी तो क्वेश्चन मुझे समझ में आना चाहिए। और उसके बाद वो नया होगा या ऐसा और क्या क्या है, नया गुड, यस, इधर आप यू कैन सी हियर, यस, क्या WTD मीन्स वांट टू डू। मैंने क्वेश्चन नया है मेरे लिए, मैंने पहले कभी वो क्वेश्चन बुक में वो कंसेप्ट पढ़ी नहीं है, तो WTD लिख के रखता हूँ, वांट टू डू, एंड वो उसमें क्या क्या है नया वो लिख के रखता था। ये मैंने सबके लिए करके रखा है, देखो 15-14 ये तो 2019 क्वेश्चन बहुत थे, तो उसके टाइम बहुत क्वेश्चन आए नहीं या नहीं आ नहीं रहे या अच्छे क्वेश्चन से, ऐसे में करके रखता था। This is all I want to discuss with you in this video. And yes, मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वही ऐसे क्वेश्चन पेजेस बना के रखो, ये 4 कॉलम ऐसे बहुत बना के रखो क्वेश्चन पेपर, कौन सा क्वेश्चन, उसका सब्जेक्ट कौन सा है और उसका क्या है, को क्वेश्चन नया है या क्या है उसमें,
या सिली मिस्टेक कर दिया आपने या क्या किया उसमें, और उसको कमेंट लिख के रखिए, क्या शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के रखिए, फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला लिख के रखिए। तो ऐसे का करने से आपका मतलब रिवाइज करते टाइम जल्दी हो जाएगा आपका रिवीजन। ये इतना पढ़ लिया, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं यही पढ़ रहा था। ये अब इतना मैं सजेस्ट करना चाहता था इस दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक दिस वीडियो विल फाइंड यू वेरी हेल्पफुल while doing question paper analysis. Thank you, and if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you and let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.